Hello, good morning, FI BCom students. So yesterday we were discussing about the okay. Yesterday we were discussing about the reason for becoming separation. Okay. Now we will discuss more. Okay. The next point is preference for male child. Preference for male child. Preference for male child. In the patriarchic descent and succession are through the males, sons carry forward not only the family lineage, also the property. Just a minute. So here we can see that in patriarchic society the male is dominated. It is called male dominated society. In the society or in the family also, that they think that the son only can carry forward the lineage or and only carry forward the property. So that is the thing. Then next one is death rites. Death and cremation ceremonies by male child are necessary for attaining the nuptial. ओके तो सभी जब हम धर्मों की बात करते हैं सो डेथ एंड क्रिमेशन सेरेमनीज मीन्स डेथ रिचुअल्स डेथ सेरेमनीज रिचुअल्स दीज आर ऑल्सो necessary and for attaining these are necessary, yes, these are necessary, but this is only done by the son, this is only done by uh, the male. So that is the thing. So the people think that the parents think that the parents wants to give up the passport to the heaven. So they think that uh, they think that if our son will not uh, if our son will not attend this kind of the rituals, the parents will not they will not get the passport of heaven. तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारे सभी धर्मों के अनुसार और हिंदू शास्त्र के अनुसार जो श्राद्ध विधि होती है या जो मरने के बाद जो विधियाँ होती हैं, तो वो सभी विधियाँ सिर्फ लड़का ही परफॉर्म कर सकता है, कि लड़का ही कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती। लेकिन जब आप सोचे कि अगर किसी माँ बाप को लड़की नहीं लड़का ही नहीं है, तो फिर वो सब रिचुअल सिर्फ लड़कियां करती हैं, कि लड़कियों को और महिलाओं को स्मशान में जाना मना है। लेकिन आजकल हमें ऐसा भी दिखाई देता है कि महिलाएं भी स्मशान में जाती हैं और जो रिचुअल्स होते हैं वो सब परफॉर्म करती हैं। लेकिन हमारा समाज जो बहुत सालों से ऐसा ढूंढता आ रहा है, ऐसा बहुत कहता आ रहा है कि नहीं, ऐसा सुनता ही आ रहा है या ऐसा ऐसे ही कुछ रीति रिवाज के साथ जीता आ रहा है कि नहीं, सिर्फ ये काम सब कुछ लड़के ही कर सकते हैं, पुरुष ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। The next point is son as the source of income. Yes, sons are those ones who earn money, and so they are given more importance to the for family. Further, the sons are insurance for the old age. They will take care of their parents when the later they have no earning capacity. On the other hand, daughter is regarded as a double loss. She is not only leaves her family when she marries, but also become an asset for her new family. So here we can see also the difference between son and girl, between the son and daughter, boy and girl. Okay, so why the people give more importance to the son? Why the parents give more importance to the son? Because they consider that they think that the son is the source of income, and he will take care of them in the old age. Okay, they means he is the insurance. Then on the other hand, suppose on the other hand, whenever the girl marries, she left her father's home, she left her father's house, and she comes in the new family, and she is the asset for the new family. So she is not going to give anything to the
father's family. She is not going to give something else to her father's family. That's why she is not considered as a she is not considered as an important part. ओके यहाँ पे हमको बताया गया है कि ज़्यादातर जो हम ज़्यादातर हम ऐसा बोलते हैं कि ज़्यादातर हमको ऐसा दिखाई भी देता है कि कभी कभी लड़कियों को और लड़कों को तो इतना डिफरेंस हमें क्यों दिखाई देता है कि लोगों का जो सोचने का तरीका है कि हाँ लड़का है तो वो फिर हमें देखने वाला है, वो हमारी देखभाल करने वाला, बुढ़ापे में हमको देखने वाला है, वही एक सोर्स का इनकम है। अगर उसकी कैपेसिटी ना भी हो फ्यूचर में तो भी वो हमको देखने वाला है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन अभी दिखाई देता है। और ज़्यादातर तो अभी ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो लड़कियां सिर्फ लड़कियां ही होती है, तो कुछ लड़कियां ऐसी भी होती है कि अपने माँ बाप के लिए अभी तक बहुत देर से शादी करती है या शादी भी नहीं करती। तो ऐसा केसेस हमको दिखाई रेयरली केसेस हमको दिखाई देता है। लेकिन ज़्यादातर लड़कों को प्रॉपर्टी का हिस्सा या ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है, क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न होता है, उसके पीछे एक रीज़न होता है कि हाँ बाबा अभी हमको यहाँ पे पैसा मीन्स हमारी देखभाल करने वाला ये है। ओके। और जो लड़कियाँ होती हैं उसको डबल लॉस बताया जाता है, क्योंकि एक बार उन्होंने जो मायके मायका छोड़ दिया, अपने बाबुल का घर छोड़ दिया, तो उनके लिए वहाँ पे उनका जो हम बोलते हैं कि जो हक वो शादी के पहले जता सकते उतना शादी के बाद वो नहीं जता सकती। और वो भी ऐसे ही सोचते हैं कि हाँ अभी ये लड़कियां हैं तो कुछ देने वाली नहीं है, और नहीं देने वाली है तो अभी ये वो नई फैमिली के जो कुछ भी खाना मीन्स जो कुछ भी उसने पढ़ाया वगैरह है और हमने जितना उसका पढ़ा है तो वो सबका सब कुछ वो दूसरे फैमिली में देने वाले हैं। तो ऐसा हमको कुछ सिनेरियो दिखाई देते हैं। इफ शी इज वर्किंग वुमन फॉर द मोस्ट ऑफ हर वर्किंग लाइफ हर इनकम एंड रीच हर इन लॉस। सो मैंने अभी आपको ये बात कही, जितना कमाने वाली है वो उतने अपने ससुराल में देने वाले हैं, मायके में कुछ भी नहीं देने वाली है। Next point is dowry. The dread of dowry is an important factor for not having female children. Had moreover the parents give dowry for her moreover the parents give dowry for their daughter's prosperity and security, but whether she remains happy और इज नॉट डिसाइडेड बाय हर डेस्टिनी। तो यहाँ पे क्या बताया है कि जो दहेज दहेज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर नॉट हैविंग फीमेल चिल्ड्रन, कि दहेज देना ऐसा तो गुनाह माना जाता है, लेकिन कभी कभी जो खुशी से जो कभी कभी दिया जाता है लड़कियों को अपने माँ बाप की ओर से, तो माँ बाप की ओर से दिया जाता है, तो माँ बाप अपने बच्चे को खुश देखना चाहते, सुखी देखना चाहते, उसकी वजह उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे चीज़ें दी जाती है, दहेज दिया जाता है। But whether she remains happy or not, it is decided by her destiny. Yes, that material things will not make you happy, but it is decided by her destiny whether she will live happy or not in her with her in-laws. Then next point is daughter may demand the share of family property. The Hindu law has made the daughter partner in the family property. So giving birth to girl is also lifelong liability. So according to Hindu law in the recent time that whatever the share is given to boy, the share is given to girl. So here that girl is considered is the girl is considered as lifelong liability. Okay. The next point is girls' virginity responsibility. Parents have to worry that their daughter remains virgin and does not bring shame on them. Their daughter will remain virgin. Virgin का मतलब होता है इसमें ओके, वर्जिन का मतलब है द पर्सन हु विल नॉट मैरी। ओके,
सो कभी कभी ऐसा होता है कि समाज के डर से अगर मेरी बेटी ने शादी नहीं की है तो उसका बहुत सारा अफेयर है, या कोई लड़का उसको फंसा देगा, या किस तरह से उसको वो आगे हैंडल कर पाएगी, हमारे होते हुए अगर उसकी शादी हो जाए तो अच्छा है। सो दीज आर मेनी थिंग्स विच कम इन फ्रंट ऑफ द आइज ऑफ पेरेंट्स। एंड कभी कभी ऐसा भी सोचते कि अगर मेरी बेटी ने कुछ गलत काम कर दिया तो हाँ, हमारे लिए इट विल नॉट बी बेरेबल फॉर देम, कि हमारे लिए अच्छा नहीं होगा और समाज के लिए भी हम समाज को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। तो ऐसा कुछ होता है। Then next question is new question, violence against women। तो महिलाओं के साथ कौन से प्रकार का जो हम वायलेंस होता है और लड़कियों को किस तरह से लड़ना चाहिए, ये हमको बताया गया है। अभी देखिए आगे, एनसीआरबी। एनसीआरबी का मतलब होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट्स 2015 प्रेजेंट हॉरिफाइंग पिक्चर ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो ये 2015 का जो डाटा हमको बताया गया है, उसका जो कुछ डाटा बताए वो थोड़ा सा हॉरिबल दिखाई देता है। आगे क्या पॉइंट देते तो आपको समझ में आएगा। एवरी 18 मिनट्स a young woman is raped in our country। ये आपको समझ में आ रहा है। That every 18 minutes a woman is raped, then every 6 hours the young woman is found beaten to death और burnt और driven to suicide। कि हर एक 6 घंटे में कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं महिलाओं को मारा जाता है, उसको जलाया जाता है, और कभी कभी इतना मजबूर किया जाता है कि वो खुद आत्महत्या कर ले। Then next is Delhi has Delhi had highest crime against women. Then comes Assam, तेलंगाना एंड उड़ीसा। तो दिल्ली जो क्राइम में हम बोलते हैं कि मुंबई जैसा क्राइम में नंबर वन है, उस तरह दिल्ली क्राइम अगेंस्ट वुमेन में कि महिलाओं के साथ जो जाति होती है उसमें नंबर वन है। उसके बाद आता है असम, उसके बाद आता है तेलंगाना और उसके बाद आते हैं उड़ीसा। Then next point is highest incidence of kidnapping and dowry deaths were reported from this city। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो दहेज प्रथा को लेकर जो जितने ज़्यादा केसेस आते हैं कि बहुओं को जलाया जाता है, मार दिया जाता है, कहीं फेंक दिया जाता है, नदी नाले में फेंक दिया जाता है, काट कर फेंक देते हैं। तो ये प्रकार के जो केसेस हमको दिखाई देते हैं वो ज़्यादातर इसी सिटी में से हमको दिखाई देते हैं। दिल्ली इज़ द रेप कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये याद रखिए, दिल्ली इज़ द रेप कैपिटल, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों पे रेप होता है। द वुमेन्स एंड गर्ल्स आर नॉट सिक्योर इन दिल्ली। एवरी डे 4 रेप केसेस आर रिपोर्टेड फ्रॉम दिस सिटी। तो यहाँ पे हर दिन में 4 केसेस आते। तो ये तो सिर्फ आपको एक अंदाज़ा दिया गया, तो इससे ज़्यादा भी शायद आते होंगे कि कितनी सारी लड़कियों और कितनी सारी महिलाओं को ये सब कुछ हम बोलते हैं जो ऐसी सारी प्रॉब्लम हमको उनको फेस करनी पड़ती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज वायलेंस अगेंस्ट वीमेन इन अदर कंट्रीज। तो ये हमारी इंडिया का बात था 2015 का जो आपको डेटा दिया गया है। तो अभी तक मैंने जो आपको बताया वो 2015 की हम बात कर रहे थे। अभी वायलेंस अगेंस्ट वीमेन इन अदर कंट्रीज के दूसरे दूसरे देशों में महिलाओं के साथ क्या होता है वो हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, intimate partner violence is the most common type of violence against the women। So violence against women is not only seen in India, but it is seen everywhere. It is seen in the world everywhere. It affects the 30% of murders of women are committed by an intimate partner. So most probably that a husband-wife relations, okay, husband-wife relation, it is a very good and pure and lovable relation, but it sometimes it converts into the uh, um, it converts into that horrible situation, or sometimes whenever the murders of women occur or committed by her husband, most probably. That now law against domestic violence. The domestic violence means the what we can say, that the problems committed by or the problems created by her in-laws, her husband, we can see right now.
20 countries have no law against domestic violence. Here, 20 countries they do not follow the law against domestic violence for women. But two such countries are Kenya and Lebanon. You have to remember Kenya and Lebanon and Saudi Arabia passed the bill that forbids domestic violence only in 2013. फोरबिड का मतलब होता है देखते हैं. Okay, to say something or to order something which is not followed. Okay, तो two such countries are Kenya and Lebanon कि जहाँ पे ये माना जाता है डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ फॉलो किया जाता है और सऊदी अरेबिया पास द बिल दैट फॉरबिड डोमेस्टिक वायलेंस ओनली इन 2013. तो सऊदी अरेबिया में जैसे हमने पिछली बार देखा था कि अगर वहाँ पे किसी लड़की पे रेप होता है तो उसको जस्टिस मिलने की जस्टिस मिलने के नाम पर उसको हार्श पनिशमेंट दी जाती है. तो यहाँ पे एक ऐसा बिल पास किया है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को फॉलो नहीं करेगा, जो फॉलो नहीं करेगा. फॉरबिड मीन्स द समथिंग द ऑर्डर विच इज नॉट फॉलोड. ओके, यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है? इन यूनाइटेड states or United Women is sexually assaulted every 2.5 minutes. तो वहाँ पे जैसा उनका कल्चर है उसके हिसाब से थोड़ा सा हम बोलते हैं कि ओपननेस और उसके हिसाब से यहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट्स है वहाँ पे जो महिला है उसमें दो दो मिनट पे या दो मिनट पे उनके रेप किए जाते हैं. कि फॉर एग्जांपल जब भी उनको एक्सपोज किया जाता है बाय थ्रू मीडिया और समथिंग एल्स that they have very little clothes on their body. So this kind of that also may be one reason uh, for this culture. Then Canada, the the word rape is not used in the Canadian criminal code. The law criminalizes the sexual assault. In Canada, the rape word is not used, but on behalf of rape, they use the word sexual assault. So the situation is the same. So whether the girl is in burqa or with entire clothes, though the mentality of man or though the mentality of male, we cannot change. If they have that dirty thoughts in their mind, if they want to enjoy the physical pleasure and by force, we can't do anything. That we don't have support as a female, we don't have any support. Okay, so थोड़ा सा लड़कों को लड़कों को पॉलिश करने की जरूरत, उनकी सोच बदलने की जरूरत है. Next point is England. Up to 30 lakh women experience violence every year. Each year. इंग्लैंड में 30 लाख से ज़्यादा है महिला है हर साल वहाँ पे उनको सेक्सुअल असॉल्ट या रेप उन पे होता है. यूरोपियन यूनियन एज पर BBC न्यूज़ द about one third of all women have experienced the physical and sexual violence since the age of 15. तो उनका जो माहौल है तो उसके हिसाब से BBC न्यूज़ जब दिखाता है तो BBC न्यूज़ बताता है कि 15 साल से उनका जो हम बोलते हैं सेक्सुअल वायलेंस और जो फिजिकल वायलेंस होता है वो उनके साथ वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है. कि हम बोल नहीं सकते कि यहाँ पे लड़कियाँ बहुत सेफ होती है. यस, दैट इज़ द थिंग. आगे का देखते हैं. काइंड्स और टाइप्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द वीमेन. तो ये नया क्वेश्चन है. अभी उसके प्रकार कौन से हैं. ओके, विथ एग्जांपल आई हैव गिवन हियर. डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स हमारे जब इंडिया में बहुओं की शादी हो, लड़कियों की शादी होती है तो वो किसी के घर की बहू बन जाते हैं. उसका घर का मोस्ट प्रोबेबली जैसे हम बोलते हैं कि उसका घर का जो हम बोलते हैं थोड़ा सा कल्चर अलग होता है. आपके मीन्स लड़के का घर का कल्चर अलग होता है.
वहाँ पे उसको एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन जैसे ही बहू घर में आती है तो कुछ सोसाइटी में, कुछ घरों में बहुओं को सिर्फ मशीन की तरह काम करवाया जाता है। सिर्फ मशीन की तरह काम करना है, बच्चे पैदा करना है, घर की देखभाल करनी है, बच्चों की देखभाल करनी है और कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। ऐसा कुछ बर्ताव या ऐसा कुछ सिनेरियो हमको दिखाई देता है। ऐसा कुछ सिनेरियो हमको दिखाई देता है। तो जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं तो लड़कियां सही में शादी करके भी सेफ है कि नहीं, दैट इज़ द वन क्वेश्चन, कि ये एक क्वेश्चन मार्क है। हाँ, तो जब शादी नहीं होती तब भी लोग ताने मारते कि अभी तक शादी नहीं हो, उसका क्या प्रॉब्लम है। जो लोगों का देखने का नज़रिया है, जो ऑल ओवर सिनेरियो हमको सोसाइटी में दिखाई देता है। शादी हो गई तो मैंने जैसे आपको परसों भी बताया था पिछली बार, शादी होने के बाद अगर लड़की ससुराल से मायके में आई है तो उसके लिए भी उसको रीज़न देना पड़ता है, सबको उत्तर देने पड़ते हैं, इतना ज़रूरी नहीं है। More than 40% of married Indian women say that they are kicked, slapped, and sexually abused by her husband. So most probably that women are abused, sexually abused, that slapped or something kicked by her husband. So जब आप शायद आपके आसपास या किसी के घर में जाके तो हम नहीं देख सकते, लेकिन जो शायद हाँ, मैंने आपको कल एक पॉइंट बताया कि सीक्रेट सुपरस्टार इस मूवी में यहाँ पे दिखाया गया है कि जो हस्बैंड होता है तो वो हस्बैंड की तरह उसका जो रुतबा होता है वो किस तरह से उसको बताता है कि हाँ मैं हस्बैंड हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं आपको पालता पोसता हूँ, तो मुझे इतना महत्व, इतना इम्पोर्टेंस घर में मिलने में राजा की तरह घर में रहता है। तू भले ही पूरा दिन काम वाले की तरह काम करे, लेकिन मुझे सभी जगह पे या जब मैं बोलूँ या वैसे ही चीज़ें होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ हमको सिनारियो दिखाई देता है। दिस वॉज रिवील्ड बाय द स्टडी ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। सो दिस स्टडी और दिस डाटा इज गिवन बाय द NCW। द सैंपल सर्वे अक्रॉस महाराष्ट्र में ज़्यादा दिखाई देते हैं, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, reveals that 81% of women suffer abuse and humiliation at home silently। तो ज़्यादातर जब हम इंडियन वुमेन की बात करते हैं तो इंडियन वुमेन का जो हम बोलते हैं फिजिकल वायलेंस या डोमेस्टिक वायलेंस, तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, इस जगह पे हमको सबसे ज़्यादा दिखाई देता है कि महिलाएं कितना बैर करती हैं, उनकी परिस्थिति क्या है। ओके, जस्ट the students, I have already started the lecture. I will send the recording. If you want to stay here, because of the electricity problem, I can't send you, but I will send you the recording. If you want to stay here, you can stay. Okay. Mir, Mir. Yes, ma'am. ओके, मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। कल का जो लास्ट पॉइंट था ना, उसके आगे का जो पॉइंट है मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्ट कर दिया था ये लेक्चर। Yes, yes, ma'am. दस 10-20 बजे। तो उसकी वजह से आपको शायद मैसेज नहीं मिला होगा, मैंने मैसेज डिलीट कर दिया था क्योंकि वो टाइम पे पहुंचा नहीं। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज देती हूँ और ये आपको अभी ठीक है अभी मैम। अभी अभी आपको चाहिए तो आप रुक सकते हैं, यहाँ पे रुक ओके सकते मैम। हैं। ओके, तो मैं ऑलरेडी ये पॉइंट्स, अभी ये नया क्वेश्चन है तो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैडम ने पूरे पूरे के पूरे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। ओके, ठीक है मैम। बने रहे यहाँ पे। दिस इज बिकॉज दे हैव नो फेथ इन द लॉ एंड द गवर्नमेंट एजेंसीज। तो जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा होता है तो उनको ज़्यादातर ना ही लोगों का, ना ही समाज का, ना ही गवर्नमेंट एजेंसी का कुछ डर वगैरह है कि अगर जो कायदा कानून बनाया गया है कि जैसे महिलाओं के लिए बनाया गया कि महिलाओं पे अत्याचार करने वालों को शिक्षा के पात्र होते, तो उनको वो भी डर नहीं लगता है। The violence against women is not confined to developing countries।
तो सिर्फ हमको डेवलपिंग कंट्रीज में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स नहीं दिखाई देता। वायलेंस मतलब क्या, महिलाओं को मारना, पीटना, टॉर्चर करना, मेंटली टॉर्चर करना, सेक्सुअली टॉर्चर करना, तो ये सब कुछ उसमें वायलेंस में आता है। ओके, इट इज रिपोर्टेड दैट इन यूनाइटेड स्टेट्स द वीमेन इज बीटन एवरी 19 मिनट्स। ओके, तो जब हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं या अमेरिका की बात करते हैं, सो दे हैव द डिफरेंट कल्चर। हमारे यहाँ पे क्या बताया जाता है कि महिलाओं को बैर करना बताया जाता है, लड़कियों को क्या बताया जाता है बचपन से, क्या बताया जाता है, आपको बैर करना है, सहन करना है, थोड़ा सा सहन कर ले। अगर उसके घर में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, अगर वो मायके चली गई है, तो माँ बाप उसको समझा फुसला के उसको अपने ससुराल में भेज देते हैं कि हाँ, समाज के डर से या शायद मेरी बेटी को मैं अभी घर में किस तरह से रख पाऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को बताया जाता है कि तू सहन कर, तू अपना मुंह बंद रख, या तू कुछ अपनी तरफ से कोई भी गलती मत कर। लेकिन ये गलती होना या ना होना ये तो सबके हाथ में होता है ना, कि इंसान होगा तो गलती होगा। एम आई राइट? इंसान होगा तो गलती होगा। समझ में आ रहा है मीर? यस और नो? यस मैम। यस मैम, मीर, आ रहा है। हाँ। यस तो मैम। जब गलती लड़कों से भी कि कैसे होता है कि हमारे यहाँ पे एक कहावत है, दो हाथ से ही ताली बजता है, एक हाथ से ताली नहीं बजता है। मैंने दो हाथ से ताली बजता है। अगर वहाँ पे कुछ गलती हुई तो वहाँ पे भी गलती होगी, वहाँ पे गलती हुई तो वहाँ पे भी गलती होगी। तो जैसे हम बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज में लड़कियों को क्या बताया जाता है, तुम सहन करो, तुम बेरेबर हो जाओ। और यूनाइटेड स्टेट्स में जैसा उनका कल्चर होता है कि जैसे ओपननेस ज़्यादा उनको वहाँ पे दिखाई देता है। ओके, तो उसकी वजह से हर एक मीन्स हम बोलते ना कि 2 मिनट में या 19 मिनट में उनको मारा जाता है। इनफैक्ट उतना बेरेबल भी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, इनफैक्ट द डोमेस्टिक वायलेंस इज द मेन कॉज ऑफ इंजरी अमंग द वुमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक वायलेंस है, यूनाइटेड स्टेट की हम बात करें तो डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से क्या होता है, वो जितना महिलाएं मार खाती है तो वो उनके लिए कि अगले एज में उनके लिए हम बोलते हैं कि पहले पहले ही जो महिलाओं का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, वो मेल से अलग है, उतनी नाजुक वगैरह होते हैं। एम आई राइट? कि उनका यस पूरा मैम। बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। जितनी आपकी एबिलिटी होती है, उतनी फिजिकल एबिलिटी महिलाओं में नहीं होती है कि उतना फिर भी महिलाएं काम करती है, फिर भी इतना सहन करती है। जब उसको मारा जाता है तो एक इमोशंस के साथ उसका जो हम बोलते हैं कि जो स्वाभिमान होता है वो तो चकनाचूर हो जाता है। और दूसरा होता है, हम उसको क्या बोल सकते हैं कि दूसरा जो है, तो उसमें एक तो फिजिकल, उसको जब मारा जाता है तो वो जो हड्डियां वगैरह अगर टूट के मारते टाइम उसकी हड्डी को कुछ हो गया तो वो रिप्रोडक्टिव एज में वो रिपेयरमेंट हो नहीं सकता। द हाईली पब्लिसाइज्ड trial of O.J. Simpson, the retired United States football player, helped the focus the media attention on the issue of domestic violence। तो यूनाइटेड स्टेट के एक जो फेमस फुटबॉल प्लेयर के ओजो सिम्सन्स सिम्सन्स यस, उन्होंने मीडिया पे फोकस, उन्होंने ये डोमेस्टिक वायलेंस के लिए उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था, उन्होंने सपोर्ट किया था कि एक जो फुटबॉल प्लेयर थे यूनाइटेड स्टेट के। इन पेरू, that Peru is also the country. In Peru, 70% of all crimes are reported to the police involve women being beaten by their husband। कि पेरू में या जो जितना भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है उतना ज़्यादा रिपोर्ट पुलिस थाने में करवाया जाता है, कि जहाँ पे ज़्यादातर महिलाएं जो होती हैं वो अपने हस्बैंड थ्रू उनको मारा जाता है या हस्बैंड उनको मारता ही रहता है। ओके, हैव यू सीन द थप्पड़ मूवी? हैव यू सीन द थप्पड़ मूवी? थप्पड़ मूवी देखा है आपने? नहीं मैम। देखिए जरूर, देखिए उसमें हाँ, हाई देखिए। प्रोफाइल हाई प्रोफाइल एक फैमिली बताई गई है। हाई प्रोफाइल फैमिली, उसमें मारा पीटा नहीं जाता, लेकिन उसमें एक ऐसा बताया गया है कि फॉर एग्जांपल उस हस्बैंड वाइफ होते हैं अच्छे, दोनों ही अच्छे घर से हैं, तो हस्बैंड को अपना प्रमोशन नहीं होता है और प्रमोशन की या प्रमोशन होने वाला है या कुछ ऐसा कुछ उसमें बताया है।
तो वो अपने घर पे सबको पार्टी देते हैं, मीन्स ऑफिस के जो कलीग होते हैं, सभी जो रिश्तेदार होते हैं, जो आजू बाजू के जो हम पड़ोसी बोलते हैं, सभी उसके घर पे आते हैं। और उस टाइम उसका बॉस उनके घर आया हुआ होता है, जो मीन्स वो हस्बैंड के घर, ओके, जिसने पार्टी दी होती है, वो एम्प्लॉय होते हैं अच्छे घर से, हाई प्रोफाइल बोलते हैं ना, हाई प्रोफाइल फैमिली, अच्छे अच्छे घरों में भी ऐसा होता है। तो वहाँ पे उसके बॉस के साथ कुछ उसकी अनबन हो जाती है। तो अनबन होने की वजह से सबके सामने तमाशा ना हो, तो उसके हिसाब से जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड को वहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो वो गुस्से में क्या कर देता है, अपने वाइफ को वहाँ पे सबके सामने वो चाटा लगा रहा है, जोर से थप्पड़ मार देता है। तो उसका टाइटल दिया गया है थप्पड़। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो पूरे इतना अच्छा घर का, दोनों ही फैमिली अच्छा है, ससुर का फैमिली भी अच्छा है, सास ससुर भी अच्छे हैं, उसका फैमिली भी अच्छा है, लड़की का फैमिली भी अच्छा है, लेकिन उसके बाद उसमें ये बताया गया कि किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, कि सबके सामने अपनी बीवी की या अपने शौहर की या अपने हस्बैंड की जो हम बोलते हैं ना रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये ऑल ओवर हम सबके लिए हैं। या कभी भी आपके फॉर एग्जाम्पल आफ्टर after so many years or after 5 or 6 years or 7 to 8 years, you will be husband, you will be wife. So at that time you have to take care of that, कि किस तरह से हमें एक दूसरों का रिस्पेक्ट रखना है। तो ये उसमें बताया गया कि रिस्पेक्ट हम नहीं रखते जब, कि सबके सामने वो जब तमाशा बन जाता है, तो आपका पूरा लाइफ क्या हो जाता है, रुइन हो जाता है, आपका पूरा लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाता है। समझ में आ रहा है पॉइंट? समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, yes. समझ में आ रहा Yes, है? ma'am. Are. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, और अब आपको मैं एक बात बता दूं, अगर फॉर एग्जांपल कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कि जो टेक्निकली प्रॉब्लम होते हैं हर रोज़ के, अभी बारिश का सीज़न है, इसकी वजह से थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन एग्जैक्ट 10:15 बजे, कि फॉर एग्जांपल आपके पास ऑलरेडी जूम है, जूम एप्लीकेशन है हाँ ना, है। हाँ, Yes, तो ma'am. Yes. है. 10:15 क्या करेंगे, अगर मैंने आपको ये भेजा भी नहीं, शायद सबको बता के रखें, अगर आपको शायद ये मिला भी नहीं, कि कॉपी नहीं हाँ मिला इनविटेशन, तो 10:15 बजे, 10:15 से 10:15 बजे, एग्जैक्ट 10:15 आप क्या करेंगे, ये डाल के रखेंगे, क्या डाल के रखेंगे, पासवर्ड और जो आईडी होता है ना आपके पास, मेरा भेजा हुआ, Yes, हाँ ma'am. तो वो डाल के रखेंगे। इसकी वजह से क्या हो सकता है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। एग्जैक्ट 10:15 मैं स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन आज थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम था, इसकी वजह से स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, इसकी वजह से मैंने मैसेज, और नेटवर्क का इश्यू होने की वजह से मैसेज डाला था पर लेकिन वो गया नहीं, इसकी वजह से मैंने उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, तो सवा Yes, दस ma'am. बजे आप रेडी रेडी रहेंगे, आपके पास ऑलरेडी आईडी और पासवर्ड होता है कि नहीं होता है? हाँ होता मैम है, होता है. होता है, तो होता है। आप डाल सकते हैं। ओके, आपको पता है कि मैडम ओके रोज मैम। ही लेक्चर लेने वाले हैं, तो सबको बता के रखिए, सबको बता के ठीक है रखें। मैम. ओके, आगे का पॉइंट हाँ देखते हैं, मेंटल टॉर्चर और सुसाइड। तो मेंटल टॉर्चर किस तरह से किया जाता है? ओवरऑल over 1 lakh crimes against women are committed by husband or other relatives annually. For example, in Bangalore, there were more than 1,000 unnatural deaths of women in 1998. Then, investigation by Vimochana, the women's organization, revealed that many of these deaths, which were officially recorded as murders, suicide, and accidents, took place due to the harassment in the marital home. तो ज़्यादातर जब महिलाओं का, यहाँ पे एक विमोचना नाम का, जो आप शायद गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा, कि वुमन का जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, द ऑर्गेनाइजेशन वी सपोर्ट द वुमन, उनके लिए ये विमोचना ये बनाया गया। तो उनके हिसाब से जब उन्होंने डाटा निकाला कि जब भी कि अननेचुरल डेथ होती हैं महिलाओं की, 1919 में एक यहाँ पे एग्जांपल देखिए, इन बैंगलोर देयर वर मोर देन 1,000 अननेचुरल डेथ ऑफ वुमेन इन 1990। तो बैंगलोर में सबसे ज़्यादा 1998 में 98 में यहाँ ये मीन्स डेथ हो गई थी, महिलाएं मर गई थी। तो जब इन्वेस्टिगेशन किया गया, तो उसका रीज़न क्या निकला, कि वो मर्डर कर देते हैं, या सुसाइड करने पे मजबूर कर देते हैं, या कुछ उनके साथ हादसे हो जाते हैं। तो वो किसकी वजह से, कि मेंटली उनको इतना टॉर्चर किया जाता है, कि ना ही वो किसी के बोल सकती है, ना ही मायके जा सकती है, नहीं माँ बाप को दुखी देख सकती है,
और ना ही अपने आप को खुश रख सकती है। तो उसकी वजह से कभी-कभी इतना हम बोलते हैं कि शायद सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, कि शायद आप में इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए, लड़कों में भी इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि लड़कों को भी आपको पता होना चाहिए। अभी तो आप मीन्स आपको भी बता रही हूँ कि लड़के होने के बावजूद आपको पता है कि घर में बीवी आने वाली, तो दोनों में बैलेंस रखना, बनाए रखना ज़रूरी हो जाता है, माँ में भी और बीवी में भी। ओके, अगर बीवी की सुने तो क्या बोला जाता है, जोरू का गुलाम, और माँ की सुने तो क्या बोला जाता है, माँ का लाल। एम आई राइट? ऐसा कुछ तरह से यस बोला मैम। जाता है, लेकिन आपको दोनों में ही बैलेंस बनाए रखना है। तो ये जैसे मैं पहले से आपको बताया कि जो आप देने वाले हैं वही सामने आने वाला है, जो आप देने वाले हैं वही सामने आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल किसी किसी फैमिली में तो अगर किसी औरत को या महिला को बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, तो उसके हिसाब से तो उसको बहुत ही परेशान किया जाता है, बहुत ही परेशान किया, मेंटली टॉर्चर किया जाता है, बात बात में उसको ताने मारे जाते हैं। अगर उसमें प्रॉब्लम नहीं है, अपनी लड़की में प्रॉब्लम, फिर भी माँ बाप ये स्वीकार करने के लिए स्वीकार नहीं कर सकते कि हमारे लड़के में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आपको एक दूसरा किस्सा बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने एक एपिसोड देखा था क्राइम पेट्रोल का। तो क्राइम पेट्रोल में ये जो सच्ची सच्ची घटनाएं बताई जाती है ना, क्राइम पेट्रोल में तो सच्ची घटना पे आधारित आपका वहाँ पे नाट्य रूपांतर आपको देखने को मिलता है। एम आई राइट? शायद आपने यस एक मैम। एक या दो एपिसोड देखा होगा तो आपको पता चलता होगा। उसमें मैंने ऐसा देखा था कि फॉर एग्जांपल जो लड़की होती है वो मिडिल क्लास से या गरीब घर की होती है, नहीं गरीब घर की मीन्स मिडिल क्लास की होती है, गरीब घर की नहीं होती है, और उसका जो शादी कर दिया जाता है, तो शादी उसको बड़े खानदान में भेज दिया जाता है, बड़े खानदान में उसकी शादी कर दी जाती है। तो वहाँ पे सास ससुर है, दो बेटे मीन्स बड़ा बेटा और छोटा बेटा। लेकिन जो बड़ी बहू होती है तो उसको भी मीन्स ये जो सोसाइटी है किस तरह से लोग सोचते हैं, किस तरह के लोग होते हैं, तो ये पर्टिकुलर दिखाया गया था। उसमें ऐसा बताया गया कि जो हम बोलते हैं ना कि रिलेशन बनाना है तो हस्बैंड वाइफ का वहाँ पे होना चाहिए, नहीं यहाँ पे तो किसी के साथ भी वहाँ पे रिलेशन मीन्स वहाँ पे लड़कियों को हम बोलते हैं कि ट्रैफिकिंग ऑफ वीमेन, लड़कियों को बेचने के लिए वहाँ पे बहुओं को बेचा जाता था, अपने घर की बहू है वहाँ पे उनको बेचा जाता, उनके उनको पैसे मिलते थे। ये एक बड़ा स्टेज पे उनका ये बिजनेस चलता था। तो वो क्या करते थे कि जो वो बहुत बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जो दो लड़के थे उनका बाप था ये बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो उनके हिसाब से उनके जो बड़े बड़े बिजनेस एजेंट वगैरह आते हैं बिजनेस में, तो हर एक को यहाँ पे उन दोनों के लिए वो जो दो बहुएं थी तो बड़ी बहू तो कुछ बोली ही नहीं क्योंकि उसकी परिस्थिति नहीं थी, वो तो एक गरीब फैमिली से थी। और ये जो दूसरी बहू थी तो जब उसने आवाज़ उठाई तो उसने उन लोगों ने क्या किया, उसको मेंटली टॉर्चर कर दिया, उसको पागल खाने में भेज दिया। और उतने पैसों के हिसाब से या अपने पैसों के दम पर उन्होंने क्या किया, उस लड़की को भेज दिया पागल खाने। और जो वार्ड बॉय वगैरह होते हैं ना, नर्सिस वगैरह वार्ड बॉय हॉस्पिटल में होते हैं ना, वहाँ पे उनको वॉच रखने को बोला। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस मीन मैम। उसको यस क्या मैम। बोला, उसको पागल खाने भेज दिया, पागल के हॉस्पिटल में भेज दिया, पागल खाने भेज दिया। दूसरा उसको क्या किया, उसके जो चुने हुए वो ये जो बिजनेसमैन है उसका हस्बैंड, उसका देवर, जो बड़े जेठ वगैरह होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसको पैसे दिए कुछ उसमें उस हॉस्पिटल के आदमियों को, कि उसको ऐसे इंजेक्शन लगाए कि कभी कभी उसको होश भी नहीं है, कोमा में चली जाए, उस पर रेप हो या कुछ भी हो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके माँ बाप को ये सब कुछ पता था कि मेरी लड़की के साथ सब कुछ गलत हो रहा है, फिर भी माँ बाप ने, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं था, कि उनके पास इतना पावर नहीं था कि लॉयर को खरीद सके और लॉयर उनका केस लड़ सके, लेकिन आखिर बोलते हैं ना कि सत्य की जीत हमेशा होती है। कहीं ना कहीं उस लड़की ने इतना वो चालाक लड़की थी, होशियार लड़की थी,
होशियार लड़की थी, जिसकी वजह से उनका जो पर्दाफाश करने का उन्होंने कोशिश किया वो बहुत ही अच्छी तरह से कि अपने ससुराल में किस तरह के लोग रहते हैं, उनके साथ क्या जाती है, उसके साथ और उसके जेठानी के साथ भी क्या जाती है। उन्होंने ये जो लड़की थी, ये दूसरे नंबर की जो बहू थी जिसको पागल खाने भेजा गया, उसने पूरा का पूरा वहाँ पे उनका पर्दाफाश कर दिया कि जिससे लोगों को समझ में कि इस प्रकार का ससुराल भी होता है। समझ में आया? तो हाँ मैम। इसकी वजह से महिलाएं आत्महत्या वगैरह करती हैं। ओके, आगे का देखते हैं। द मोस्ट वुमन अनफ्रेंडली डिस्ट्रिक्ट अपीयर्स टू द सहारपुर। ये एक गांव है, या सॉरी ये एक डिस्ट्रिक्ट है, यूपी हम बोलते हैं ना, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में, जहाँ उत्तर भारत की बात करते हैं तो यूपी, मध्य प्रदेश, ये जो राजस्थान, यहाँ पे लड़कियों को सिर्फ सेक्सुअली ऑब्जेक्ट की तरह ही देखा जाता है, सेक्सुअली ऑब्जेक्ट की तरह ही देखा जाता है। हियर एज मेनी एज 9 केसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स अकर एवरी डे। यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस को देख के हर एक दिन में बहुत सारे केस, ये तो कुछ कम बताए, 9 केसेस में दिन के 9 केसेस आते हैं कि किसी ने मारा है, किसी ने ऐसे फेंका है, किसी ने इतना बहुत मारा है कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई या कुछ उसको ऐसा डैमेज हुआ कि वो रिपेयरमेंट नहीं हो सकता। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज ब्राइड बर्निंग। ब्राइड बर्निंग, bride means bahu. The data gathered by WAMA, WAMA is also one of the organization, the women's organization, shows that the women have been murdered for not bringing in dowry such such pretty items as gold necklace. तो कुछ कुछ कास्ट में, फॉर एग्जाम्पल आपको दहेज प्रथा के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा, आपको यस मैम। हाँ, तो वहाँ पे जब दहेज दिया जाता है तो दहेज में क्या क्या दिया जाता है आजकल, तो क्या फॉर्मेलिटीज क्या दी जाती है आजकल के? पैसा या सोना चांदी। पैसा या सोना चांदी, पर उसके अलावा अभी तो सोने का भाव बहुत है, तो अभी क्या देते हैं लड़कियों को, क्या देते हैं लड़कियों को, क्या दिया जाता है, क्या दिया जाता है लड़कियों को? पैसा सोना चांदी दिया, क्या दिया जाता है? वो उसके ससुराल वाले जो मांग करते हैं, गाड़ी या फिर और कुछ हाँ, मैंने ऐसा बोला, ये वो। मीन्स यही मुझे चाहिए था। मटेरियल जो थिंग्स होता है ना, कि जो भौतिक चीज़ें होती है, कि फॉर एग्जांपल एसी चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए, सोफ़ा चाहिए, बेड चाहिए, सब कुछ जो घर में लगने वाली चीज़ें, वो सब कुछ चाहिए उनके कंफर्ट के लिए। तो ऐसा फॉर्मेलिटीज़ आजकल तो प्रोवाइड किया जाता है। ओके, आगे का देखते हैं। Wama notes that the most horrifying case was that of young woman who was murdered for not having brought buffalo। तो ये तो एकदम सिंपल वाला बफेलो, तो हमें तो कैसा लगता है कि कितना इजी वाला है बफेलो। बफेलो मीन्स जो बफेलो नहीं लाया, जैसे हम बोलते हैं ना गांव में, जैसे लाइव स्टॉक होते हैं कि नहीं गांव में, गांव की बात है शायद ये। यस मैम। तो गांव में दहेज के और पे क्या दिया जाता था? पशुधन। पशुधन में अपने साथ गाय या भैंस, जो हम बोलते हैं कि जिससे सोर्सेस पैदा हो सके, इनकम के सोर्सेस पैदा हो सके, ऐसे जानवर लेके आओ अपने साथ। तो एक बार एक महिला ने शायद उसको दहेज में ये नहीं लाई होगी, जो भैंस बोलते हैं ना, तो भैंस बोलते हैं, वो नहीं लाई होगी, उसकी वजह से उसका मर्डर कर दिया, उसकी वजह से उसका मर्डर किया। तो कितना घटिया सोच है ना, कितना घटिया सोच है ना। यस मैम। तो देखिए कितनी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से महिलाओं को बैर करना पड़ता है। तो जैसे आप लड़के हैं तो आपको ये पता है कि जिससे मेरी बहन है, जिससे मेरी माँ है, वैसे आपकी बीवी के साथ भी आप अच्छा बर्ताव करेंगे, व्यवहार करेंगे, और लड़कियों के साथ भी, कि जो देखने का जो नज़रिया होता है रिस्पेक्टफुली, तो आपके टीचर हो या कोई औरत हो या कोई लड़की हो, तो उसके साथ किस तरह से या किस तरह से बर्ताव करना है या किस तरह से रहना है, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। एम आई राइट? ठीक है, यस मैम। आगे का पॉइंट देखते हैं। द एनसीआरबी डाटा शोज दैट इन द डाउरी डेथ केसेस वर रजिस्टर्ड, कि एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसके हिसाब से जब उसने डाटा निकाला तो ज़्यादातर केसेस किसके आते हैं? डाउरी डेथ के आते हैं। इंसिडेंट्स Incidents have increased by 90% over 1995 लेवल, कि 1995 में वो केसेस कैसे हो गए थे?
बढ़ गए थे। 90% जो केसेस थे कैसे थे, बढ़ गए थे। इन 2010 as per the Tamil Nadu Crime Records Bureau 30 dowry deaths were recorded in Chennai। तो 2010 में तमिलनाडु क्राइम रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो चेन्नई में कितना हुआ था, डाउरी डेथ कितना हुआ था, 13 डाउरी डेथ केसेस हुआ था। Thus चेन्नई रैंक्स द हाईएस्ट इन द डाउरी रेट। कि चेन्नई में जो दहेज प्रथा को लेके जो आत्महत्या होती है, हत्या होती है, वो सबसे कैसी होती है, ज़्यादा होती है। कैसी होती है, ज़्यादा होती ज़्यादा है। होती। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। शायद अभी कितने बजे, 11 बजे ना, 11 बजे ना, यस मैम। अभी आपका मैथ्स का लेक्चर होगा शायद, एम आई राइट? हाँ मैम। हाँ ओके, ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं। ओके, वी शैल यस मैम, कंटिन्यू ओके। टुमारो।